So, welcome to the session and the most awaited session, I believe. So, everyone wanted this strategy, understanding that how you should prepare for the UGC net, what could be the best way of preparing the things. So, we have Payal, we have Sarita, who both of them are all India ranks, and they have qualified JRF, and I could proudly say that they have been my students. So today I would be speaking less, they would be sharing their experience more, right? So without any delay, I would request first Payal to introduce herself, and she is also currently working as an HR officer. So please, Payal. Yes, thank you so much, ma'am, for inviting me in such a great session. And I wish कि ये सेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो और जो इसका पर्पस है वो सर्व हो सारे एस्पिरेंट्स को. So thank you once again, ma'am. And I want to give a compliment that you are looking so beautiful. And even after such a long period of time, I am seeing you live. So it's a great blessing for me. So yes, my name is Payal Bohra, and I had completed my MBA from Podar Management and Technical Campus, Jaipur. After that, I had started the preparation of UGC NET from Lakshmi Kushwaha ma'am, and I had hardcore prepared under the mentorship program of herself. So I had qualified my NET examination in the very first go under her supervision, and then after that, I had qualified my JRF examination with All India rank 16, and currently I am working as an HR officer in DVC in Jharkhand. Okay. Thank you. Sarita, if you could introduce yourself. Yes, ma'am. I am Sarita. I have done my MBA from Core University, Roorkee. I cleared UGC NET 2025 December with AR 25. मैम, यू हेल्प मी अ लॉट. मतलब आपके सेशन से मुझे इतना हेल्प रहा. सारे सेशंस वगैरह, मतलब आपके एमसीक्यू सेशन और वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया. सारे सेक्शन वगैरह, लेबर लॉज. इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि समझ नहीं आता था सब्जेक्ट, बट आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है सारे सेशंस में. थैंक यू सो मच मैम. Most welcome. That is like it is only the thing is I have been only the guide. It's all your hard work, and others also those who have joined. So basically, those who have even qualified PhD or assistant professor, that is also big thing. See, any small achievement plays a very important role. At every stage, you are going to learn something or else. सो अगर आप पीएचडी भी करते हैं और कोई बोलता है पीएचडी से क्या ही होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने से क्या होता है स्पेशली इन एचआर सो इतना डिग्रेड कर देते हैं एचआर एज एन सब्जेक्ट सो प्लीज डोंट लिसन टू देम यू हैव टू मेक योर पाथ ठीक है कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो किसी में भी आप जेआरएफ भी कर लोगे स्टिल यू आर दी वन कि जेआरएफ और नेट तो आपका एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है जहाँ पे आपको खुद ही प्रिपरेशन करनी है और आपको केवल ये एलिजिबल करता है फर्दर जाके इंटरव्यू देना देन यू हैव टू क्रैक योर सेल्फ यू हैव टू मेक योर सेल्फ कंसेप्चुअली क्लियर ठीक है इस पे ज़्यादा डिटेल में हम दोनों हमारे गेस्ट से ज़्यादा पूछेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन ने यहाँ पे यहाँ तक पहुँचने में स्पेशली पायल व्हेन शी इज़ वर्किंग एज एन एचआर ऑफिसर एंड आई नो शी हैव गिवन एफर्ट्स इतनी मेहनत करी है दैट एवरी स्टेज हैव सीन हर ब्रेकिंग डाउन लाइक ऐसा भी स्टेज आया व्हेन शी यूज्ड टू से कि अब नहीं होता मैम सो आई वाज लाइक नो एटलीस्ट गिव वन ट्राई ठीक है सो आई हैव सीन हर जर्नी देन अगेन सरिता हैज़ बीन साइलेंट स्टूडेंट ऑफ माइन समवेयर शी हैव प्रिपेयर्ड फॉर मी फ्रॉम मी एंड दैट इज़ ऑल्सो अ प्राउड फीलिंग कि कहीं ना कहीं मेरी डायरेक्ट उनके साथ में इंट्रैक्शन नहीं रहा है बट येस शी हैज़ स्टडीड शी हैव टेकन द गाइडेंस और ये एक तरीके का है ना व्हेन यू ओन दी मेंटोरशिप विदाउट टेलिंग कि नहीं आप मेरे पास आओ मेरे पास पढ़ो ऐसा नहीं है शी हैव ओन्ड दी मेंटोरशिप शी हैव एक्सेप्टेड मी एज एन टीचर एंड दे शी ट्रस्टेड एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग right and her sister also prepared for me and she is also working with coal india limited and that is also very nice okay so Payal you have been handling very crucial position in dvc tell your Yes, experience ma'am. what why concept clarity is important and how hr as in subject or hr officer or executive trainee as in position is important एंड व्हाट कैन बी दी स्ट्रैटेजी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टूडेंट्स नो कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कितना हमें पढ़ना है कैसे पढ़ना है और एक बार अगर नहीं क्वालिफाई होता है तो हमें हमारी दूसरी स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये सारी चीज़ें यस
सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल फेज। जब मैंने मेरी नेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं ब्लैंक थी। आई डोंट नो नेट का फुल फॉर्म भी क्या होता है, क्या इसके स्कोप है। और जस्ट कि कोविड आ गया था तो मैंने स्टार्ट कर दिया था कि ठीक है, जस्ट फॉर द सेक कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक काम करते हैं, नेट ही कर लेते हैं। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि मैनेजमेंट से करना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से करना चाहिए। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट अ सिंगल स्कोप। फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे स्टार्टिंग में मैं किसी एजुकेटेड से जुड़ी, मैं पढ़ती गई, बट आई वॉज नॉट नोइंग अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन विच इज द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री। और मुझे उन चीजों का किसी चीज का पता नहीं था, मैं बस एमसीक्यू करती रहती थी। और ठीक है, एक टाइम आया तब मुझे पता चला कि जब मैं एक्चुअल में मॉक टेस्ट दे रही थी, मुझे लगा मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैं सब कुछ तो पढ़ रही हूँ। फिर मुझे पता चला कि एक राइट वे जो एक नीडेड है वो शायद मेरा राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जब मैं लकीली फॉर्चुनेटली बोलूं तो मैं लक्ष्मी कुशवाहा मैम की क्लास में अचानक से एक बार चली गई। फ्री क्लास था मैम का अकेडमी पे। और जैसे ही मैं मैम की क्लास में गई, मैम वाज डूइंग सम एमसीक्यूज और मैम समझा रही थी। मैंने बोला मेरे को तो एक भी एमसीक्यू नहीं आ रहा है, मतलब मैंने क्या पढ़ा है। इवन आफ्टर 1 मंथ आई एम हैविंग माई एग्जामिनेशन एंड सच अ ग्रेट एग्जामिनेशन, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं एक एमसीक्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे से कैसे होगा। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि शायद मैं कंटेंट मेरा सही नहीं है। एक होता है कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसका कंटेंट सही होना चाहिए। ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन कि नहीं मुझे कंटेंट इजी लग रहा है, आई शुड गो फॉर दैट। नहीं, उसी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में अगर आपको एक रियलिटी चेक मिल जाए, दैट इज फार बेटर देन व्हेन यू आर एक्चुअली इन द रियल सिनेरियो, व्हेन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन इन द सीबीटी मोड। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब फिर मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, मेरे शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट किया कि नहीं पाए, दिस इज नॉट द राइट वे। और शायद तो खुद को सेटिस्फैक्ट्री कर सकती है बट ये लॉन्ग रन में नहीं काम करेगा। देन आई रिलीजियसली फॉलो लक्ष्मी मैम। मैंने स्टार्टिंग से सारे नोट्स प्रिपेयर करे। मुझे लॉ में कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं लॉ में क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, मीनिंग क्या है, स्ट्राइक क्या होता है। मुझे आज भी याद है एक एजुकेटर के सेशन में मैंने पूछा था, मैम अपन मशीनरी क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग सच अ टेक्निकल वर्ड इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मुझे नहीं पता कि मशीनरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक रेजोल्यूशन मशीनरी है ये। वो मुझे ओवर पीरियड ऑफ टाइम पता चला। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स का क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर धीरे धीरे जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानूंगी वो है कंसिस्टेंसी, खुद पे ट्रस्ट, और सेकंड है राइट मेंटोर। और आई एम ग्लैड कि मैं मैम के मेंटोरशिप के अंडर मैंने क्वालिफाई किया है। एंड जब तक आप थ्योरेटिकल एग्जाम देते हो तब तक आपको इजी लगता है। इवन जब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, एनएमडीसी हुआ, एनएचपीसी हुआ, तो मुझे फील हुआ कि वहां पे जो नेट क्वालिफाइड है, मैं नेट क्वालिफाइड थी उस टाइम पे, बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज फार बेटर फ्रॉम द जेआरएफ स्टूडेंट, शायद क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो होना ही चाहिए, आपका उसका राइट इम्प्लीमेंटेशन और आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इंटरव्यू वगैरह में देती थी। और फिर जब यहाँ आके मुझे पता चला कि एक्चुअल में मेरे को टाइम लगा, मैंने ऑल इंडिया रैंक 16 के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया, बट जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरे माइंड में है, आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि जैसे ही मैं काउंटर करती हूँ जो भी सिचुएशंस इंडस्ट्रीज में आती है, तो मैं उसको किस तरीके से टैकल कर रही हूँ। आपका माइंड एक पॉपअप करता है कि नहीं मेरे को इसको इस तरीके से करना चाहिए। मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे ही मैं डीवीसी में ज्वाइन किया, मेरा फर्स्ट डे ओरिएंटेशन था, वहां पे स्ट्राइक हो गया था। एंड आई वाज लाइक स्ट्राइक फर्स्ट डे में अगर ऐसा एनकाउंटर कर रही हूँ, हाउ आई वुड हैंडल। फिर जब मुझे जाके पता चला कि एक्चुअल में स्ट्राइक क्यों होती है, स्ट्राइक अपन पढ़ते हैं कि ठीक है सीजेशन ऑफ द वर्क होता है अंडर द इंडस्ट्री, फिर वहां पे जाके पता चला कि अच्छा ऐसा होता है। जो अपन पढ़ते हैं कि नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, ये जो होता है, तो मैंने वहां पे हेड ऑफ द प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाके पता चला कि एक्चुअल में ये कंसिलिएशन प्रोसेस इस तरीके से काम करता है, जो अपन बोलते हैं ट्राईपार्टाइट बॉडी, कि जब गवर्नमेंट बॉडी का कोई भी एक पार्टी, न्यूट्रल पार्टी आता है और उसको एक एमिकेबल सेटलमेंट लेके आता है, वो थर्ड पार्टी कौन होता है, जस्ट एक थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ पे आके मुझे पता चला। और जब न्यू लेबर कोड्स आए तो बहुत ज्यादा एक हाइप बन गया था, न्यू लेबर कोड्स आ गया, इंडस्ट्री में भी हमारे एएलसी वगैरह आए थे, लेबर कमिश्नर आए थे जो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। तो आई वुड शेयर अ स्मॉल एक्सपीरियंस विद यू ऑल कि कैसे मैम की
टीचिंग मेरे को हेल्प कर रही है जब मैं एक्चुअल में इंडस्ट्री में हूँ। सर ने मुझे बोला कि आर यू अवेयर अबाउट द न्यू लेबर कोड पायल? आई वाज हाँ सर मुझे पता है। बोला तुमने कैसे पढ़ा, ये तो इम्प्लीमेंटेशन अभी हुआ है। मैंने कहा नहीं सर, मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स प्रिपेयर करके मैंने एएलसी का प्रिपरेशन किया था, तो इस ड्यूरेशन में मैंने न्यू लेबर कोड सारे पढ़ चुकी थी मैं। तो सर ने बोला क्या चेंजेस है न्यू लेबर कोड में, क्या चार वर्टिकल्स है? तो मैंने सर को सारे वर्टिकल्स बता दिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल वाला है जिसमें 3 एक्ट्स को कंपाइल किया गया है। तो सर वाज शॉक्ड कि सच में आपका इतना अच्छा नॉलेज है। और वो मेरा नहीं, वो मैम की अपब्रिंगिंग है मेरे अंदर। मैम की इस तरीके से मैम ने कंडीशनिंग की कि मेरे अपने आप, अब मैं भूलती नहीं हूँ लॉज को। मेरे को सेक्शन अभी भी आप पूछोगे मुझे सेक्शन याद है। और जहां पे भी मैं जाती हूँ आई एम लाइक मैम, आप बोलते हो कि आपको प्राउड हो रहा है, आई एम लिटरली सेइंग कि मुझे प्राउड हो रहा है कि जैसे ही मैं कहीं पे भी जाती हूँ, आर यू लक्ष्मी मैम स्टूडेंट, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि ये होता है जहां पे आपकी यूएसपी क्रिएट होती है कि मैं नहीं, पायल आपका सेशन का वेट करेंगे, लक्ष्मी मैम का सेशन आपके साथ कब होगा। तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी एस्पिरेंट जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक बार क्वालिफाई नहीं होगा, सेकंड टाइम क्वालिफाई नहीं होगा, थर्ड टाइम नहीं होगा, फोर्थ टाइम नहीं होगा, जब भी नहीं होगा प्लीज डोंट गिव अप। क्या पता जिस टाइम पे आप गिव अप कर रहे हो वो आपका एक चांस हो जहां पे आप ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो। एंड आई वुड रियली से दिस कि मैंने मैम को बोला था मैम नहीं, अब नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं कर पाऊंगी, अब वो बुक्स वो कंटेंट मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा। एंड समहाउ आई वाज फीलिंग सच अ स्टक इन माय लाइफ कि मैंने इतना टाइम तो मैंने ड्यूरेशन में दे दिया नेट में, और अब मैं कहीं और भी नहीं जा सकती हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैम ने बोला ठीक है एक ट्रायल दो, एंड आई लिटरली गेव अ ट्रायल। और मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आए थे, और आई स्कोर्ड अराउंड 232 मार्क्स। तो वो जस्ट मैम की वजह से। और जैसे कि ये नहीं होता कि आप लॉ पढ़ रहे हो तो जस्ट फॉर द सेक कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये नहीं, क्योंकि आप जब एक्चुअल में इंडस्ट्री में जाओगे सबका कोई ना कोई सपना होगा, चाहे वो पीएचडी हो, एज ए प्रोफेसर आप काम करोगे, चाहे एज ए इंडस्ट्री आप किसी ऑफिसर लेवल पे काम करोगे, तो आपके जो मैनेजर होंगे वो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे को मेरे सर ने बोला था कि पायल एक केस आया है पीएफ का, आप बताओ पीएफ का कैसे क्या परसेंटेज जाएगा, आपको इतना पता होना चाहिए, ये आपको रटना नहीं है इतना इतना परसेंट जाएगा, इतना पेंशन में जाता है, ये आपको एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, और वो होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। अगर आप कंपैशनेट केसेस देख रहे हो तो कंपैशनेट केसेस में आपको पता होना चाहिए कि आपको उस केस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर्स प्रेजेंट होने चाहिए कि आप उस केस को डिस्पोज ऑफ कर पाओ, और कौन से केस में आप नहीं कर पाओगे। वो कब होगा? जब आप लॉ की एक एक लैंग्वेज को इंटरेस्टिंगली पढ़ोगे। एक बार हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, पीपीएम जो सब्जेक्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरडी है, आप थोड़ा सा उसको थ्योरेटिकल भी समझोगे तो ठीक है। बट इफ यू आर प्रिफरिंग टू गो इन द पीएसयू, तो प्लीज सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लॉ को बहुत अच्छे से समझो और मैम को रिलीजियसली फॉलो करो। लॉ को मैम से अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि आपको पता होना पायल बहुत वन मोर जरूरी है। थिंग, एक एक पर्सपेक्टिव जो होता है कि एचआर की क्या रिस्पेक्ट है पीएसयूज में, या एचआर एज एन सब्जेक्ट कितना वैल्यूएबल है, ये एड ऑन पॉइंट आई वुड लाइक यू टू ऐड। रीजन इज कि कई बार लाइक व्हेन आई टेक अ यूट्यूब सेशन, अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था कि इस सब्जेक्ट में तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई वॉज लाइक, जिसको नहीं पता है ना वही शायद ये बात बोलेगा, और जिसको उसकी वैल्यू का अंदाजा है, जिसने मेहनत करी है, वही राइट डायरेक्शन दिखाएगा। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपको एज एन एचआर ऑफिसर ज्वाइन करके क्या एक्सपीरियंस और कितना रिस्पेक्ट मिल रही है उस पोजीशन की। ओके मैम, एक तो आपको इतना रेप्यूटेड जॉब है ये एचआर ऑफिसर। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, इधर इट इज फाइनेंस, आईटी, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इंडस्ट्री लेवल पे, एचआर ऑफिसर का इतना इंपॉर्टेंस है, इतनी रिस्पेक्ट है कि अगर अपन पढ़ते हैं कैंटीन का सिलेक्शन, कैंटीन कमिटी जब बनती है इंडस्ट्री में, जो अपन फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ते हैं, तो मैम मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी, इसके थ्रू मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि एचआर ऑफिसर का क्या महत्व है एक इंडस्ट्री में। तो हम
एचआर ऑफिसर क्या होता है ना, सारे प्लान्स, सारे पॉलिसी, सारे प्रैक्टिसेस को वही डिसाइड करेगा, वही इम्प्लीमेंट करेगा, वही उस चीज को डायरेक्ट करेगा, इधर इट इज गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, जो पर्पस है क्या वो सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब कैंटीन कमेटी का जब सिलेक्शन की बात आई तो उनका एक डेमो था कि ये लोग खाना कैसे बनाएंगे, तो मैम सिर्फ एचआर ऑफिसर को ही इनवाइट किया गया था। एंड जब मैं वहां पे गई और वहां पे मुझे पता चला कि जो मास्टर शेफ जो है, जो भी नियर बाई एरिया के जो आए हैं जिनको 15 15 20 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग हमें इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं कि मैम बैठिए, मैम आप ये करिए, मैम बताओ क्या आप अप्रूव करेंगे कि हमारा जो कैंटीन कमेटी है वो अप्रूव करके क्या हम इसको ऑनगोइंग प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस। अगर रिपब्लिक डे, तो उनको लगता है रिपब्लिक डे क्या है, इंडस्ट्री के अंदर रिपब्लिक डे, क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयूज है तो आपको हर चीज देखनी पड़ती है, रिपब्लिक डे का भी कंट्रोल आपके अंडर होता है। आपको वहां पे सीआईएसएफ की टीम भी आपको सल्यूट करेगी एज एन एचआर ऑफिसर, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आपको छोटा सा छोटा, अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज करोगे, अगर जो भी, अगर आप कुछ भी, आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मास लेवल पे पहुंचानी है, दैट इज द एचआर ऑफिसर जो मेन की इंटीग्रल रोल प्ले करता है उस टाइम पे। तो एचआर ऑफिसर को डीमिंग नहीं करना है कि नहीं स्कोप नहीं है, इट जस्ट अबाउट आप कितना लर्निंग है, आप कितना सीखना चाहते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में आगे हर कोई फ्रेशर होता है, आई एम ऑल्सो द फ्रेशर, और शायद मुझे भी हेजिटेशन हो रही है अभी भी कि मैं काम सही डायरेक्शन में सीख पाऊं, कुछ गलती तो नहीं करती। बट आई वुड लिटरली से कि जिसका भी ये मिथ है कि एचआर ऑफिसर का कोई नहीं है, कि कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं है, इससे रेपुटेड जॉब आपको पीएसयू में मिल ही नहीं सकती, कोई और डिपार्टमेंट का रिस्पेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फिनेंस के अकाउंट्स देखेगा, मनी मॉनेटरी टर्म्स वगैरह देखेगा, लेकिन जो स्टार्टिंग होता है, जो एक राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए प्लान्स, वो कौन फॉर्मुलेट करेगा, वो एचआर ही फॉर्मुलेट करेगा। दिस इज द ठीक है सरिता, आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टेल अबाउट योर स्टोरी, योर बैकग्राउंड, कैसे आपको मोटिवेशन मिली स्पेशली एचआर में प्रिपेयर प्रिपेयर करने की, आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या फॉलो किया, क्या स्ट्रैटेजी थी? यस मैम, इनिशियली मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ, मेरा बैकग्राउंड बायो था, बट मेरी सिस्टर ने एमबीए किया हुआ है, तो उनकी एचआर में जॉब हुई। तो मैंने तो एमएससी के लिए सोचा हुआ था कि एमएससी करूंगी, बट उन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि अब मैं भी एमबीए करूं, मुझे भी इनकी तरह जॉब चाहिए। तो फिर 2023 में एमबीए में एडमिशन लिया मैंने। मुझे आइडिया नहीं था सब्जेक्ट्स वगैरह का कुछ भी, तो मेरी दी ने बोला था तुम पढ़ोगी लक्ष्मी कुशवाहा मैम से पढ़ना, तो उन्होंने मुझे प्लेलिस्ट शेयर की हुई थी आपकी। तो मुझे समझ तो सब्जेक्ट्स आते नहीं थे और कॉलेज में भी इतना थॉरली पढ़ाते नहीं है, ऐसे ही बता देते हैं थोड़ा बहुत। तो मुझे उन्होंने शेयर किया था कि इससे पढ़ना। मैं पढ़ती गई, जो समझ में आता था लिखती जाती थी, लिख लिख के पढ़ती हूँ मैं ना, तो ऐसे पढ़ती रहती थी। उसके बाद ये सब तो हो गया, एचआरएम, ओबी, एचआरडी, ये सब। अब लेबर लॉस कभी क्लास में पढ़ाया नहीं हमें, मतलब ना हमारे टीचर जो थे कॉलेज के, वो एक भी लॉ नहीं पढ़ाया उन्होंने हमारे कॉलेज में। मैंने आपसे जितना पढ़ा उतना पढ़ा। तो मैं लॉस के लिए क्या करती थी, एक साइड आपकी वीडियो चलती थी और एक साइड लॉस पूरा प्रॉपर पीडीएफ खोल के। तो मेरी दी ने बोला था ऐसे पढ़ना है, मैम की वीडियोस देखनी है, फिर उसको लाइन बाय लाइन तुम्हें लॉ में जो भी पीडीएफ है उसमें अंडरलाइन करके तुम्हें पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे करके सारे लॉस बहुत अच्छे से पढ़ लिए। मैंने सीआईएल की प्रिपरेशन की थी, अभी इनिशियली एग्जाम हुआ था उसके लिए पढ़ा था। फिर नेट का तो एग्जाम दे रही थी लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था। फिर इस टाइम मेरा था कि ये लास्ट है, अगर नहीं हुआ तो सिर्फ पीएसयू के लिए प्रिपेयर करूंगी मैं। तो इस टाइम लकीली मैंने 2 महीने बहुत अच्छे से लग के पढ़ाई की। आपके हमेशा मतलब दिन रात आपके वीडियोस चलती रहती थी, प्लेलिस्ट पूरी सेव की हुई थी, डाउनलोड की हुई थी मैंने, वही सारा टाइम पढ़ती रहती थी। पेपर 1 पे थोड़ा कम फोकस था, लेकिन पेपर 2 तो मेरा सॉलिड हो गया था। तो 2 महीने लग के पूरा किया और फिर लकीली हो गया जेआरएफ। अब पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, ठीक है, लकीली तो वो भी हो जाए बस। क्वेश्चन ये था कि आपने एमबीए के दौरान ही प्रिपरेशन कर दी थी, सो जो एमबीए कर रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा, क्या एमबीए के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए या हमें एमबीए का वेट करना चाहिए? नो मैम, प्रिपरेशन तो आप जब चाहो स्टार्ट कर सकते हो, और ये अच्छा भी है क्योंकि फर्स्ट सेम में मैंने
सोचा था कि करूंगी, बट हो नहीं पाया था क्योंकि सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं था इतना, सब्जेक्ट्स भी नहीं पता थे मुझे। फिर सेकंड सेम में ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया था, फिर समझ आ रही थी चीजें। और ये है कि मतलब आप बहुत अच्छे से बता रही थी सारी चीजें, तो बहुत इजी रहा मैम सच में। तो प्रिपरेशन करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप फर्स्ट सेम से कर रहे हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बहुत। राइट। तो डिड यू हैड अ टाइम टेबल, मतलब जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंट होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है समझ में नहीं आ रहा है मैम, टाइम कम रह गया है, क्या करें, एमसीक्यूज करें कि थ्योरी पे फोकस करें। तो आप कैसे अपने स्लॉट्स को डिवाइड करते थे, मतलब किस तरीके से डिवाइड कि आज रिवीजन क्या होगा, रिवीजन टाइम पीरियड, क्योंकि कंटेंट बहुत है और स्पेशली मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा कंटेंट तो वो तो ह्यूज कंटेंट है। बहुत ही बड़ा है। लेकिन ये श्योरिटी है कि इसके बाहर नहीं आता है। यही एक आध होगा। क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन होते हैं कि आते हैं, ठीक है। और आई आई बिलीव ये एक मेरा प्लस पॉइंट भी है और लोगों के लिए नेगेटिव भी है। और लोग इसको, मेरा नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं, नेगेटिव इसलिए बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे लीगल वे में, इलीगल वे में, बट ठीक है। आई एम हैप्पी कि कहीं ना कहीं से लोग पढ़ रहे हैं। तो इस ह्यूज, जो हम बोलते हैं ना सिलेबस को, यूजुअली ये कंपैरिजन होता है कि मैनेजमेंट में तो बहुत सारा है पढ़ने के लिए, एचआर में तो केवल एचआर है। बट ये पर्सपेक्टिव भी गलत है क्योंकि हम लॉ पढ़ते हैं, वो भी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको ब्रेक करना, इसको रिवाइज करना, और एमसीक्यूज भी करना है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज की आपने? सो ये दोनों क्वेश्चन मेरे सरिता के लिए भी रहेगा और पायल के लिए भी। तो सरिता आप प्लीज आंसर करें। यस मैम, मैं क्या करती थी कि आपका पढ़ाई एग्जाम प्रेप पे प्लेलिस्ट है, तो मैं सारी प्लेलिस्ट डे बाय डे करती रहती थी। मेरा ऐसा नहीं था कि टाइम टेबल है, बट ये था टारगेटेड स्टडी करती हूँ मैं, कि एक दिन में आज मुझे इतना कर लेना है। तो पहले आपकी पीपीएम की सारी प्लेलिस्ट देखती थी, समझ आता था, नहीं आता था तो उसको गूगल कर लेती थी, और कि और पता चल जाए। मेरे पास बुक्स थी कुछ, उससे पढ़ लेती थी। लेकिन हाँ, प्लेलिस्ट मैंने आपकी वीडियोस, हर एक वीडियो देखी है मैंने, प्लेलिस्ट से ही पढ़ती थी आपकी। तो सारे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाते थे। उसके बाद आपके एमसीक्यू सेशन, तो हर एक यूनिट के आपने एमसीक्यू सेशन प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उससे हो जाता था। और एक नेट की आपने पीवाई क्यू सीरीज शेयर की हुई है यूट्यूब पे, तो उससे पढ़ लेती थी मैं। तो मैम सब सब हो हो गया। गया था, सब कर यस। लेती थी, मतलब चैप्टर्स भी हो, यूनिट्स भी हो रही थी, पीवाई सो क्यू बेसिकली सेशन भी कंसिस्टेंसी आपसे। आप रखो, आपका सारा चीज हो जाएगा, घबराने की यस जरूरत मैम। नहीं है। अभी भी मेरे पास में मैसेज आते हैं, मैम नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम था, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, या रिवीजन, कोई इश्यू नहीं है। आई वुड से वो नेगेटिविटी, वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, ये सबके साथ में होती है। सी आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड पीएचडी, ठीक है, और रैंक 1 से, एंड आई एम दी ओनली वन टू गेट सिलेक्टेड आउट ऑफ टॉप 25। वहाँ 25 लोग बकायदा मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स आए थे, वहाँ से मेरा ही सिलेक्शन हुआ। और मैं अकेले इस बैच में अभी कर रही हूँ पीएचडी, नो वन एल्स इज देयर। ये पूरा सेशन केवल मेरे लिए रन किया जा रहा है वहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात होती है कंग्रेचुलेशन मैम। कि आपके लिए पूरे टीचर्स लगे पड़े हैं केवल एक सिंगल स्टूडेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं उनको वो क्वालिटी लगी होगी कि हाँ, हम एक सिंगल बंदे को भी पढ़ा सकते हैं, इन पे एफर्ट्स लगा सकते हैं। ये कहाँ से आता है? ये ओवर दी टाइम आता है, अचानक से नहीं हुआ। मैं नहीं बोलूँगी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एक ही दिन में पढ़ लिया, जो पहले से पढ़ते आ रही हूँ। सो पेपर वॉज ऑफ 2 आवर्स, आई वुड गिव माई एक्सपीरियंस, 2 घंटे का पेपर था। आई स्टडीड इट रियली वेरी हार्ड। मेरी स्टडी होने के बाद भी आई स्टडीड इट, मैं रिवीजन करके गई 4 दिन। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। एंड 2 आवर्स का पेपर था, 11 o'clock स्टार्ट हुआ, 1 o'clock तक था। 12 12 बज के 10 मिनट पे मेरा पेपर हो गया था। आई वॉज सिटिंग आइडियली एंड आई वॉज 100% श्योर कि इसमें तो हो ही जाएगा। द रीजन इज वो कंसेप्ट इतना बिल्ड हो गया ना कि आई गॉट द पेपर एंड टिक 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 टिक, 10 मिनट में तो रिसर्च खत्म हो गया था मेरा। जो भी मैं टाइम पास कर रही थी, हाँ दोबारा पढ़ लूँ, दोबारा कर लूँ। सो दिस इज लाइक ओवर द टाइम। अब ये नहीं, अगेन आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। इंटेलिजेंस हम्म। नहीं, सब जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, और हार्ड वर्क से ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन हाँ, उसको कंसिस्टेंट टारगेट बना के ही करना है कि हाँ हमें ये करना है। फिर कोई इफ एंड बट नहीं है, फिर तो कोई कुछ भी बोले क्या ही हो जाएगा पीएचडी करके, वो भी एचआर में पीएचडी कौन करता है, ये भी क्वेश्चन है, पीएचडी कौन करता है एचआर में। तो आपको पता है ना आपकी डायरेक्शन कहाँ है, आपको करना क्या है, कैसे जाना है। मुझे पता है मेरे को पीएचडी क्यों करनी है,
सो आई नो मेरे को क्यों एक्सपर्टीज चाहिए। इसी तरीके से एज एन स्टूडेंट आप जब एचआर को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, बाकियों को सुनना बंद कर दो। घोड़े की तरह वो होते ना, एक ही चीज को टारगेट एग्जैक्टली। बना के चल रहे हैं। आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो बहुत। देखो, एक 100 पोजीशन हो, आपको तो एक ही चाहिए, ठीक है? एक पोजीशन है, आपको एक ही चाहिए। सो व्हेन आई अप्लाइड, इट इज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। वहाँ मैनेजमेंट में, पूरे मैनेजमेंट में 3 पोजीशंस थी और एचआर की केवल एक थी, तो मुझे तो एक ही चाहिए थी, मिल गई। बाकी जो ओपन पोजीशन थी मैनेजमेंट में, उनकी भी हायरिंग नहीं हुई, मतलब उनको भी उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, वो नहीं। खाली ही है, उनको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, चाहे 2 साल 3 साल, जो टाइम आप दे रहे हो ना, ईमानदारी से दो। जहां आपकी ईमानदारी आएगी, जहां आप खुद से सवाल करोगे ना कि हाँ मैंने ये करना है, तो करना है। फिर इफ एंड बट नहीं। तो कितने भी नेगेटिव कमेंट्स आए, एक टाइम था मुझे भी शायद ये असर पड़ता था अन अकेडमी में। पायल ने मुझे स्टार्टिंग से देखा है कि कितने सारे नेगेटिव कमेंट से कम फर्क भी पड़ता था। अब इट्स लाइक दे डोंट नो, उनको मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं पता, उनको मेरे टारगेट्स नहीं पता, लेट देम स्पीक। ठीक है, तो ये लेके चलना है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्लास के अंदर अभी भी इस सेशन में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। आई बिलीव अनुषा ऑलरेडी पहले क्वालिफाई कर चुकी है। काफ़ी और भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, आइदर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी। ठीक है, आपको पता है आपको क्या करना है। तो यस पायल, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी व्हाइल प्रिपेयरिंग? Before coming to the strategy, I would like to address one of the most important question जो मैम से पूछा था, सरिता मैम से, कि आपको जो प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना चाहिए वो एमबीए की कौन से सेम में करना चाहिए। जो मेरा सजेशन है, आपको फर्स्ट ईयर यू शुड हार्डकोर आपको डिवोट कर देना चाहिए कॉलेज को। क्योंकि अगर आप अभी से स्ट्रेटेजी प्लान करने लगोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि एमबीए का इंस्टीट्यूशन का जो करिकुलम है वो आप ब्लैंक, बिकॉज आप कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आ जाओगे। फर्स्ट ये मेरा पॉइंट है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट सुन रहे हैं। सेकंड पॉइंट जो मेरा है, बिकॉज यू हैव टू बी सो पर्टिकुलर कि आपको जो नेट करना है वो आप मैनेजमेंट से करना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सभी को पता है कि एमबीए के थर्ड सेम में अपन लोग सेलेक्ट करते हैं इस चीज को कि अपन को कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करना है, जहां पे अपन को अपनी ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सपर्टीज को डेवलप करना है। तो जब तक आप उस चीज को डिसाइड नहीं करोगे, तो फिर आपको उसके रेपरकशंस फील करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर गोइंग फॉर द कोड नंबर 17, तो आपके जो भी स्कोप अवेलेबल है मार्केट में, यू आर गोइंग टू पुट अ पॉइंट कि जहां पे आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, हाँ, ऑब्वियसली। क्योंकि एक्चुअली मैं जो किसी से भी आप गाइडेंस लेने जाओ ना, तो ये बोलते हैं कि एचआर की इतनी ओपनिंग्स नहीं आती है। आप पीएचडी भी करोगे तो एचआर में इतना स्कोप नहीं है, तो बच्चे मैनेजमेंट ले लेते हैं। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप डिसाइड कर रहे हैं आपको एचआर करना है, तो ये आपका पर्सपेक्टिव है, आपका डिसीजन है। फिर आप उसको टारगेट लेके चले, बिकॉज ऐसा है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है पीएसयूज में सबसे ज्यादा एचआर की ओपनिंग्स आती है यूजीसी नेट वालों के लिए। बाकी तो मैंने बहुत रेयर ही सुनी है कि फिनांस बाकी की आ नहीं रही है, आती है। मैनेजमेंट की आ रही है। ठीक है, तो पीएसयू आपका टारगेट है, तो यूजीसी नेट का सिलेबस इज आइडल सिलेबस हर एक एग्जाम के लिए। लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, तो ये सिलेबस तो आइडल सिलेबस है किसी भी पीएसयू के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। यस, अब नाउ आई और वांट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एनीवन हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन, दे कैन रेज योर हैंड्स और आप खुद अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, या तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या कमेंट आप अपनी बातें खुद कॉल करके अनम्यूट करके आप अपने आप से पूछ सकते हैं। यस, एनीवन वांट टू एक आस्क? रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉल करके बोलिए, ताकि हाँ, जो आपका मेन मेन, पर्पस है हाँ। कम्युनिकेशन का वो पहुंच पाए, इंटेंडेड मैसेज पहुंच पाए। See, my son is more excited to see. वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाजू में ही बैठा हुआ है। हाउ एचआर एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट, आई वुड लाइक टू एड्रेस, ये शायद आकांक्षा मैम का है क्वेश्चन। एचआर अगर आप चूज कर रहे हो, तो आप दो स्कोप खोल रहे हो आपके लिए, एक है आप पीएचडी और दूसरा है पीएसयूज।
ठीक है। मैनेजमेंट के लिए भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो होता है, आप पीएसयूज में जा सकते हो फॉर द मार्केटिंग पोजीशन, और दूसरा है पीएचडी के लिए। तो दोनों का स्कोप वी कांट कंपेयर कि कौन सा अप है कौन सा डाउन है, इट जस्ट डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट, योर एक्सपर्टीज, और कौन सा डोमेन में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हो। तो इफ यू आर फार बेटर इन कि आप अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स को ऑप्ट कर पाते हो, आप डील कर पा रहे हो, तो यू शुड गो फॉर एचआर। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका इन्फ्लुएंसिंग स्टाइल ज्यादा अच्छा है, आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो गो फॉर कोड नंबर 17। तो कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों सब कोड में, लेकिन बस फर्क इतना सा है, कोड नंबर 17 में पीएचडी के लिए आपका स्कोप ज्यादा वाइड रहता है, क्योंकि आप मल्टी फेसिटेड हो जाते हो, वहां पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हो। जो मैंने इनकाउंटर किया है कि फाइनेंस में आप एक्सपर्टीज होते हो, आप इकोनॉमिक्स में होते हो, आप बहुत सारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स में होते हो, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ाते हो, ओबी एचआर ये तो एडिशनल है। तो अगर पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो कोड नंबर 17 इज गुड, आई वुड See, प्रिफर what इट। I would want to clear here is कि now I am basically doing PhD, और यहाँ पे मैंने ये रियलाइज किया है that even if you are the HR, आपने HR में PhD का जैसे JRF क्वालिफाई किया या PhD क्वालिफाई किया, आप एज एन HR होकर भी मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है एचआर और फिनेंस को कंबाइन करके, एचआर और मार्केटिंग के, जैसे हम बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी, तो ऐसे भी टॉपिक्स हैं। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि केवल एचआर वालों को केवल एडमिशन नहीं मिले, एट लास्ट वो मैनेजमेंट में ही करते हैं। आपका ओवरऑल सब्जेक्ट जो मैनेजमेंट है ना, आपको पीएचडी मैनेजमेंट में एचआर एज एन सब्जेक्ट मिल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपको, आप अगर एचआर में जेआरएफ क्वालिफाइड हो, आप मैनेजमेंट में अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। आप मैनेजमेंट का टॉपिक ले लो ना, आप, क्योंकि आपने वो भी पढ़ा है, वो भी तो मैनेजमेंट में भी पढ़ाते हैं, तो ओबी का ले लो, वो तो है मैनेजमेंट का टॉपिक। तो यहाँ पे बस ये होता है कि आप कितने लाइक सही तरीके से सामने वाले को कन्विंस करोगे। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक्स भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि हाँ, दोनों चीज़ें, हाँ वाइडर स्कोप तो होता है क्योंकि आप मैनेजमेंट और भी सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो एग्जैक्टली। ओवरऑल आपको बोला जाएगा आप पूरे मैनेजमेंट में जेआरएफ क्वालिफाइड हो। बात यहाँ पे आ जाती है, तो वो पर्सपेक्टिव लोगों ने ये बना लिया कि एचआर का तो स्कोप ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप एचआर में जाके भी मैनेजमेंट के ओवरऑल टॉपिक्स पे रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, हाँ एक और क्वेश्चन है, PSUs how you prepared, and MCQs how you attended. Please, how many hours you have studied, how you revised, Anusha. अनुष्का मैम का क्वेश्चन है। और शायद पायल आपके लिए है ये क्वेश्चन। Since PSU vacancies are not coming on the basis of UGC NET since 1 year, in that case, what to do? What is possibility of coming vacancies on the basis of UGC NET? See, इसका सिंपल सा आंसर है, UGC NET के बेसिस पे आए या ना आए, वो अपना एग्जाम करवाएं, पढ़ना तो यही है। एग्जैक्टली अल्टीमेटली पढ़ना तो यही है ना, तो इसमें जो कोई, रास्ता है वो रास्ता वही है हाँ जो आप पढ़ रास्ता रहे हो। वही है, सब्जेक्ट वही है, कंटेंट वही है, पढ़ना आपको वही है। आप अगर पीएसयू की सेपरेट एग्जाम को भी प्रिपेयर करोगे ना, आपको पढ़ना यही है। तो आप ये पढ़ रहे हो मत, आप मल्टीपल चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। आप पीएसयू के लिए प्रिपेयर करोगे तो केवल पीएसयू के लिए प्रिपेयर करोगे। कंसेप्ट क्वेश्चन, कई बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं मैम तो बहुत डिटेल में पढ़ाती है, यूजीसी नेट के बहुत क्वेश्चंस अलग होते हैं, पीएसयू का उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे कंसेप्ट तो वही है। उल्टा पीएसयू के क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं जहां कंसेप्ट क्लैरिटी और इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन इफ यू वांट पायल, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से हमें, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी नेट। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, यू आर वेरी राइट कि अभी वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम आ रही है, बट ऑन द अदर साइड अगर अपन पॉजिटिव नोट पे इस चीज को देखा जाए तो पीएसयूज की वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आप एचआर एंड लेवल लोग उस ग्रुप में हैं या मैम के ग्रुप में एडेड है, तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, या फिर आप अभी IELTS जो अपकमिंग आने वाला है, या फिर बहुत सारी वैकेंसीज है सीआईएसटी जिसमें आने वाला एग्जाम है। होते हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स है जिसमें आने वाला है। अब आपको मेन, आपको ये है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको मेन एम आपको ये रखना है कि आपको जो यूजीसी नेट का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको अच्छे से करना है, जितना डिटेलिंग वे में आप कर सकते हो। अगर आपने वो एग्जाम एक बार क्वालिफाई कर लिया, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, तो आपका जो स्कोप होगा वो वाइडन हो जाएगा।
आप मल्टीपल पीएसयूज एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, और आप उस चीज को इंटरव्यू में भी क्रैक कर सकते हैं। तो इसका कुछ नहीं है, आप पीएसयूज के एग्जाम मल्टीपल आ रहे हैं, बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार ग्रुप को थॉरली देखना चाहिए आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, शायद दिन में दो दो एक एक, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है, तो एक बार यूजुअली थोड़ा आई सा आप ऑल्सो थॉरली कीप ऑन देखिएगा। शेयरिंग, जब भी ओपनिंग होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर दूँ। पढ़ाई का स्ट्रैटेजी वही रखना है क्योंकि कंटेंट वही है। गणेश इज आस्किंग a bit different question, can a appearing student apply for HR exams? सी अपियरिंग के लिए अलग से आता है, जो फोर्थ सेमेस्टर होते हैं, जैसे CIL अपियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक्सेप्ट कर लेती है, यू कैन सिट फॉर द एग्जाम, बट ज्वाइनिंग से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, यू शुड हैव दैट डिग्री विद यू। ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर वाले UGC नेट भी कभी भी दे सकते हैं, आप कभी भी अपियरिंग है तभी भी दे सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर UGC नेट दे सकते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Sarita, if you want to add anything from your side, how did your sister, or what is her story to qualify CIL? She must be sharing with you. कितना टफ है एग्ज़ाम, या किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी थी? यस। यस मैम, वो ना मतलब यूपीएससी के लिए प्रेप कर रही थी। तो क्या हुआ था कि एक बैकअप तो था ही कि हाँ एमबीए कर रखी है, तो पीएसयू का चांस था उनके पास। तो मतलब उन्होंने फिर ट्राई किया और उनका लकीली हो गया, उन्होंने मतलब एग्जाम दिया और सीआईएल में उनका सिलेक्शन हो गया 2022 में। ओके। फिर उन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन की, मतलब इंस्पायर किया कि तुम पढ़ो पढ़ो एमबीए में ही जाओ अब, क्योंकि एक बात तो था ही कि हाँ पूरा मतलब गाइडेंस थी कि क्या क्या करना है। तो पहले से ही सॉर्ट आउट था कि हाँ तुम्हें एचआर में ही करना है अब, और वीडियोस तो बस आप ही की देखनी है, आप ही से पढ़ना है, कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं उन्होंने। तो मैम ये सब तो था कि हो गया। अच्छा, गणेश इज आस्किंग, कुड यू प्लीज सजेस्ट द बुक्स? सी देयर इज द, मेरे हिसाब से मैं आपको बुक्स बता देती हूँ। अगर बुक्स पढ़ने हैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। कोई जैसे, मैं स्पेसिफिकली एक बुक का नाम नहीं ले रही हूँ, जैसे ट्रूमैन है, अरिहंत है, गुड है, दे आर एग्जाम ओरिएंटेड। कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए यू नीड टू स्टडी द टेक्स्ट बुक्स। गैरी डेस्लर फॉर HRM, PRN सिन्हा लेबर लॉस, रॉबिन स्टीफन, एक बुक पकड़ लो लेकिन एक अच्छी बुक पकड़ो, और स्टीफन रॉबिन्सन फॉर OB। ठीक है। और मैनेजमेंट के लिए मिश्रा, आई बिलीव सो। ठीक है। और लेबर मार्केट के लिए मल्टीपल बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन लेबर मार्केट का जो टारगेट आपको स्टडी करना है HR, वो एक्चुअली बिट्स एंड पार्ट्स में है, अलग अलग जगह पे। ठीक है। लेबर मिनिस्ट्री वेबसाइट आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ सरिता, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स एंड रिसोर्सेज डिड यू यूज टू स्टडी? मैम मैंने तो एक टेक्स्ट बुक प्रीफर की थी, और उससे जितना मतलब हो पाता था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक से इतना कवर कर लें, क्योंकि इतना सारा कंटेंट मिलता है तो सब पॉसिबल नहीं हो पाता कवर करना। तो आजकल के सिनेरियो में देखें तो वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहती हैं। राइट। आप बुक्स पढ़ो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियोस को भी प्रीफर करो, क्योंकि जब कोई समझा रहा होता है तो वो चीज बहुत अच्छे से ग्रेस्प हो जाती है हमारे माइंड में। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियोस तो देखो, आप बुक्स प्रीफर करो वो भी है, लेकिन वीडियोस को भी गो थ्रू करो एक बार। Yes, Madhusudan, you can unmute yourself and ask your question. Yes, you have raised your hand. गुड आफ्टरनून मैम। Yes, good afternoon. मैम जैसे मतलब सारे बच्चे स्ट्रैटेजी पूछते हैं, जैसे कि हमें तो पता है कि आपसे ही पढ़ना है क्योंकि वो वन एंड ओनली सोल्यूशन है। मतलब आशीर्वाद स्वामी को तो आप जानते हैं, जो भी पावर ग्रिड में है, वो मेरा जूनियर है। तो मैं उसे जब पूछा कि आप एक कैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो बोला कि नहीं लक्ष्मी मैम से ही। तो बोला कि मैं सोलोली सिर्फ लक्ष्मी मैम को ही फॉलो किया, और कुछ नोट्स ही बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि लक्ष्मी मैम क्या करते हैं ना, सो सारे बुक से कंपेल करके नोट बनाते हैं। मतलब आप उनके नोट फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप 5-6 बुक कवर कर रहे हो। Right. तो अगर हम अपने एजुकेटर के ऊपर डाउट करेंगे तो फिर सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो ये भरोसा तो रहना चाहिए। और कुछ दिन पहले कुछ बच्चे ने ये पूछा था कि मैम कैसे स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, क्योंकि प्लेलिस्ट तो भरा पड़ा है और 100 से ज्यादा वीडियोज भी हो गया है। तो कुछ लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे कि अभी कहाँ से शुरू करें, PPM भी कवर हुआ है, IR भी खत्म हुआ है। तो वहां पूछे थे कुछ बच्चे ने कि मैम कैसे कवर करना है।
तो अगर आप बोलेंगे कि कैसे कवर करना है थोरली, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा सबके लिए। हाँ, ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। सी आई हैव, जो ऑलरेडी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कोर्स को फॉलो करते हैं, यू हैव टू, आपका सिलेबस क्लियर है, मैंने आपको शीट दी है, उसके अंदर सिलेबस है उस पर्टिकुलर यूनिट का और क्लासेस है। यू डिसाइड कि लाइव क्लासेस तो करने ही हैं, वो एड ऑन है आपके लिए, आप लाइव क्लासेस के साथ उस यूनिट को कवर कर रहे हैं। जो ऑलरेडी हो चुके हैं वो साइमल्टेनियसली एटलीस्ट एक दो वीडियो आप डेली बेसिस पे करते जाओ। कंटेंट ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो वीडियो का, बिकॉज काफ़ी स्लो पढ़ाती हूँ मैं, थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाती हूँ, बच्चों की समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो डिसाइड कि इस यूनिट को मैंने स्टार्ट करना है, यूनिट 1 हो गया है, उसके नोट्स आपके पास में है, उसका टॉपिक आपके पास में, टिक कर दो, वो हो गया टॉपिक, टिकट। ठीक है, रही बात एमसीक्यूज की, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ एक बार मैं अपनी साइड से सिलेबस कवर कर दूँ, आपके पास कंटेंट हो जाए, उसके बाद वी विल स्टार्ट दी एमसीक्यू। एक साथ नहीं कर सकते आप, पीवाईक्यू भी करना है मैम, एमसीक्यू भी करवाना है मैम, आपने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यू विल लर्न, आपके पास जब पूरा एक बार आप स्टडी कर लोगे, उसके बाद एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवाएंगे, तो आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, आपके पास एक बार कंटेंट आ गया है, नाउ यू विल अगेन रिवाइज इट, फिर हम पीवाईक्यूज भी करेंगे। सो दिस इज हाउ यू शुड फॉलो। पेपर 1 के लिए भी यही सेम चीज़ है। ठीक है, पेपर 1 के लिए भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है, पेपर 1 को तो इग्नोर कर नहीं सकते, पेपर 1 इज इक्वली, और यू कैन से उससे ही आपका जेआरएफ होगा। ठीक है, और बुक्स अगेन, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो, यू डोंट हैव टू रेफर एनी बुक्स, बट स्टिल अगर आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वो बुक पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे, जहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, मैं हमेशा से शुरू से ही अपने वीडियोस में भी, सेशंस में भी, बुक्स जो एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ पढ़ाने के लिए, मैंने वही बताई। सो आई एम नॉट दी वन कि अरे बच्चों को पता चल जाएगा तो मेरी तो क्लासेस ही बंद हो जाएगी। नो, आई एम द वन कि हाँ, यहाँ से कंटेंट है, आप अपने आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम है, मैंने कंपाइल किया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं उस हिसाब से क्वेश्चंस बनाती हूँ, एनालिसिस करती हूँ और आपके तक पहुँचाती हूँ। ठीक है, यस। मैम, आई मधुमिता, यू वुड वांट टू लाइक आस्क? टू ऐड वन पॉइंट। या पायल। तो शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट होगा कि इतना कंटेंट है, पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में 10 यूनिट्स है, इतना वास्ट जो सिलेबस है उसको कैसे कवर किया जाए। जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो थोड़ा एप्लीकेबल आप कर सकते हो अगर करना चाहो। आप क्या करो, पहले फर्स्ट यूनिट है फॉर एन एग्जांपल पीपीएम, उसमें भी दो दो पार्ट्स है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप उनको डिवाइड करो, आप पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करो, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, आप उसको एक दो दिन में 3 दिन में आप कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल मैम का क्लास, अगर मैम का ऑनगोइंग क्लासेस है तो आप रोज मैम की क्लास लो। अगर आपका इतना स्पीड है कि आप मैम के नोट्स के साथ अगर आप नोट्स बना पा रहे हो वीडियो के साथ, तो वो बहुत बेस्ट है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो, दैट्स गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मैम के वीडियो को अच्छे से सुनिए और फिर उसके बाद में मैम के कंटेंट पीडीएफ को खोलो और फिर आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। फिर क्या होता है, जैसे आप एक यूनिट का आपने 2 सब ग्रुप्स बनाए, आपने उन 2 सब ग्रुप्स को एक एक करके आपने पढ़ा, उनका रिवीजन किया, फिर मैम के एमसीक्यूज मेरे को लगता है मैम हर एक यूनिट के बाद में लेके आती होगी, या फिर जैसे भी मैम लेके आ रही है, आप उस यूनिट के बाद में एमसीक्यूज लगाओ। अगर आप एमसीक्यूज नहीं लगाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। और एमसीक्यू आप जब कर रहे हो एमसीक्यूज, तो एमसीक्यू आपको कैसे करना है, जैसे मैम अगर कोई एक क्वेश्चन पूछ रही है उसमें 4 ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक ऑप्शन आ रहा है डायरेक्टली आप चूज करके कि पोल में आ गए ठीक है मेरा हो गया, नहीं, आपको वो जो थर्ड ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन जो अपार्ट फ्रॉम द करेक्ट वन, आपको उस पर एम्फोसिस करना है कि जो 3 पॉइंट्स है वो कौन से टॉपिक से रिलेवेंट है। क्या वो पीपीएम से रिलेटेड है, क्या वो किसी और एचआरएम से रिलेटेड है, क्या वो एचआरडी से रिलेटेड है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता रहेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि आप क्या होता है, आपने पढ़ तो सब कुछ लिया, आपको इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है कि ये क्वेश्चन आ कौन से पार्ट से रहा है। तो अगर आप उस जो इनकरेक्ट आंसर्स है उनको भी गोच करके आप चेक करोगे कि नहीं यार, नहीं ये वाला जो है ये इस एरिया से आया गया है, आप क्या करोगे, तुरंत आपका माइंड एक आपको हिंट देगा, नहीं ये तो उस टॉपिक से है। आप क्या करोगे, आपको नहीं भी आएगा तो आप उस कॉपी में से देख के नहीं ऐसे होगा ये। जैसे आईआर है, आईआर बहुत ह्यूज है और शायद एक बार बहुत मोनोटोनस हो जाता है, अगर उसमें अराउंड 10 to 12 डेज लगता है अगर आप उसको अच्छे से करोगे। उसको डिवाइड कर लो, पॉलिसीज, फिर ट्राइपर्टाइट, बाइपर्टाइट, उनकी जो जो है उनको फिर इंटरेस्टिंगली आप वैसे पढ़ो और वैसे ही उसको एमसीक्यूज लगाओ। आप एक साथ करोगे
आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मोनोटोनस और आपको माइंड में एकदम हसल बसल हो जाएगा कि मैं इस कॉन्सेप्ट को लगाऊं कैसे। ठीक है, तो आप ये जरूर करिएगा अपने स्ट्रेटेजी में। As a net qualified, can we join as an assistant professor on the basis of code 55 subject and prepare for PSU side by side? uh, you can join as an assistant professor the place where they are allowing you. ठीक है, बट वॉट आई हैव एक्सपीरियंसड इज कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम ब्रांड या बड़े कॉलेजेस की बात करें, दे आस्क फॉर पीएचडी, मतलब आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये मैंडेटरी कंडीशन बना दी है गवर्नमेंट सेज कि आप क्वालिफाइड हो गए हो, लेकिन जो टॉप के कॉलेजेस हैं। लेकिन हाँ, अगर हम स्टार्ट करने की बात करेंगे, आप मीडियम कॉलेज या मॉडरेट कॉलेज जहाँ से उन लोगों को अलाउ कर देते हैं नेट क्वालिफाइड, रीसेंट नेट क्वालिफाइड को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, यू कैन ज्वाइन इट। एंड येस, वाइल टीचिंग यू कैन प्रिपेयर। आप पढ़ा रहे हो ना, तो वाइल टीचिंग यू कैन प्रिपेयर द सब्जेक्ट, उसमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट वाइल वर्किंग, आप कहीं पे काम कर रहे हो तो कई बार आपका टाइम मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अनुषा हैव रेज द हैंड। अनुषा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अनुषा इज नोट्स के बारे में, नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। देखो, जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो टाइम तो लगेगा। द थिंग इज व्हेन यू आर राइटिंग इट विल टेक टाइम, एंड आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। द ओनली थिंग इज लॉन्ग सेंटेंसेस के बजाय कीवर्ड्स लिखो। पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। ऑथर डेफिनेशन भी लिख रहे हो ना, ऑथर और कीवर्ड मैं क्लास में बताती हूँ, ये कीवर्ड है, ये ऑथर के डेफिनेशन में ये कीवर्ड है, उतना ही लिखो, क्योंकि इससे खुद ही आप डेवलप करोगे कि मुझे इस आंसर में या इस चीज़ को आंसर करते वक्त ये कीवर्ड याद रखनी है। पूरा लाइन नोट्स में नहीं लिख सकते, बुक थोड़ी लिखनी है, बुक थोड़ी लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स। पूरा एक मिनिमम वेजेस एक्ट एक पेपर में खत्म हो जाना चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक पेपर में खत्म हो जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन जैसा टॉपिक भी 2 पेपर्स में खत्म हो जाना चाहिए, आपके नोट्स इतने छोटे होने चाहिए। ठीक है, और वो आप ओवर द टाइम आएगा, मल्टीपल टाइम। सी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, इट वाज लॉन्ग बैक इन 2018, बट हर एक लॉ को कम से कम मैंने 3-3 4-4 बार लिख के प्रैक्टिस किया, एंड देन जब फाइनली फाइनल नोट्स तैयार किए, वो मेहनत की जरूरत पड़ेगी। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, आपको एक्स्ट्रा आवर देना पड़ सकता है, यू हैव टू डू इट। शॉर्ट में करो, सब कुछ मत लिखो। यस, नोट्स कंपैरिजन करके बनाओ, नोट्स हाँ कंपैरिजन करके बनाओगे तो ज्यादा इजी होगा। जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, उन दोनों को कंबाइन करके बनाओ। राइट, एक पेपर लो A4 साइज, उसको बीच में एकदम लाइन अप करके, इधर पेमेंट ऑफ वेजेस और इधर मिनिमम वेजेस, आपको बहुत इजी होगा उस चीज को पढ़ने में। जैसे कि BOCW एक्ट है, एक चाइल्ड एक्ट है, तो आप उसको कंपैरिजन करो, आपको पता चलेगा कि वहां पे लेबर ऑफिसर की बात करी गई है, मिनिमम वेजेस में दूसरे कमिश्नर के बारे में बात करी गई है, पेमेंट ऑफ वेजेस में दूसरी बात। तो आपको एक कंपैरिजन मोड में आप रहोगे तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, आई हैव रेदर देन कि अगर आप गिवन द बुक हैंड भरोगे। रिटन नोट्स, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किए, वो कंपैरेटिव वाले, उसी पे बेसिस पे आप अपने नोट्स बनाओ। यस अनुषा, you wanted to ask something, you have raised your hand, you can ask your unmute yourself and ask the question. Okay, I don't know. Anyways, any other question? It is difficult. पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? या अनुषा, you have joined again. Yes, ask your question. Unmute yourself. You're not audible. शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है उनकी साइड से, एक मिनट. लेफ्ट हो रहा है। Yeah, now. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, Anushka. Hello, Yeah, ma'am. yeah, audible. I'm audible? Yes, yes. Okay, ma'am. Yeah, thank you very much, ma'am, for conducting this session, ma'am. It's very helpful for us. So, my doubt is, ma'am, this HR syllabus is vast, no, madam. So, when I am listening to the classes, some like 1 hour classes or 1.5 hour classes,
I'm starting full enthusiasm with the initial video. By the end of the class, after 15 years or like that, I'm unknowingly I'm mixed up skipping with that things. video. Huh. So I'm not listening with that much enthusiasm at the first 5 minutes or 10 years. So that I felt that I am skipping some of the content at the end of the classes. For the second time, if I am listening like that, first to 15 minutes I will listen. So after 2 3 hours of after 2 3 times of listening also, that last content I'm missing. So what is my question is, I want to make my notes for revision or like that without missing any content. If I can make notes at the first time of listening or after 2 3 times of listening in the class, which is beneficial for us, ma'am. Okay, so what you should do is when you see the class for the first time, the first Huh. time is the time when you invest at most of your time. जब हम पहली बार सुनते हैं ना तो हम उसको एक्चुअली पूरा सुनने की कोशिश करते हैं. So when you listen for the first time, you should start making your notes, right? So then comes the syllabus is very vast, interest goes down, excitement and everything goes down. In that case, you should now limit your time. Paper 1, do paper 2 for 1 hour, paper 1 another. Switch the topics. You cannot complete single unit in one day. So do multiple units. आज पीपीएम स्टडी पीपीएम के 2 टॉपिक स्टडी लेबर वेलफेयर और लेबर लॉस में 2 लॉस. डिवाइड इट so that it will help to build your interest. If you keep on doing the same things, वो boredom आएगा, that is for sure. ठीक है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आज ये, हाँ अगर आपके अंदर इतना मोटिवेशन है आज तो ये टॉपिक खत्म करना है तो कर लो, लेकिन जहाँ पे यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम, यू शुड एक्चुअली गो फॉर स्मॉल स्मॉल. आप एटलीस्ट यू कैन मेक डाउन अ पॉइंट कि अच्छा हमने थोड़ा सा टॉपिक तो कवर कर दिया ना आपका. हम वो सिनर्जी पढ़ते हैं ना, गेसाल्ट साइकोलॉजी, स्टडी सिनर्जी. होल इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दी पार्ट्स. तो वी आर नॉट टेकिंग एज इन पार्ट, लास्ट में हम होल आउटपुट लेंगे. फाइनली यू आर गोइंग टू कवर द थिंग्स. तो आप पूरा यूनिट एक दिन में नहीं कर सकते, कंसेप्ट कंटेंट ही इतना बड़ा है, बोर हो जाते हैं, नेचुरल है. ब्रेक डाउन द टॉपिक्स. आज पीपीएम कर लिया, लेबर वेलफेयर का कर लिया, लेबर लॉ कर लिया, डिफरेंट 3 टॉपिक्स, एंड अल्टीमेटली यू आर इन्वेस्टिंग 1 hour और 2 hour मैक्सिमम. दैट इज इनफ. बट हम कर रहे हैं. नेक्स्ट डे स्टार्ट रिवाइजिंग द प्रीवियस वन. रिवीजन का मतलब एक बार गो थ्रू करना है, फिर से उसको बैठ के नहीं पढ़ना है. ठीक है. रिवीजन क्या है, लाइक अभी मैं बैठ के मुझे जो पॉइंट्स याद आ रहे हैं वो भी रिवीजन है. सो रिवीजन का मतलब नहीं कि प्रॉपर बुक लेके बैठेंगे, टाइम अलॉट करेंगे. नो, समटाइम यू कैन सिट आइडली, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी है, पॉइंट आपने रिवाइज कर लिए, दैट इज ऑल्सो रिवीजन. सो वॉट यू स्टार्ट डूइंग इज, फर्स्ट रीडिंग में यू स्टार्ट मेकिंग द नोट्स. सेकेंड रीडिंग में Okay. व्हेन यू डेवलप दैट कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको अपने आप वो पॉइंट समझ में आएगा और आप लिखोगे यू योरसेल्फ. और ये सबके लिए करेक्ट है, सबके लिए ट्रू है, दैट जितने बार आप उसको पढ़ोगे उतने बार नया कंसेप्ट बिल्ड होगा. Right? Multiple units will be confusing. How? See, every unit is interrelated. Keep the units different ना. PPM करो, labor welfare करो, labor law करो. 3 different topics. They have to be studied multidisciplinary. उनके रिलेशन है एक दूसरे से. HR OB से रिलेटेड है. HR के अंदर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड जो पढ़ते हो, आप HRD में भी वही पढ़ते हो. तो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है ना. HR का पढ़ रहे हो, HRD भी कंप्लीट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो रहा है. सेम मेथड से सोचते हैं. तो मल्टीपल टॉपिक समझ पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, अरे यहाँ पे भी तो यही पढ़ना है. राइट. ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हम HRD में भी पढ़ते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाले मेथड्स भी वही हैं, थोड़े बहुत ऐड ऑन हो जाते हैं. जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, HRD का हिस्ट्री, HRM का हिस्ट्री, OB का हिस्ट्री, इवोल्यूशन सेम है. ट्रेड यूनियन का इवोल्यूशन, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन का इवोल्यूशन, ऑल आर सेम. थोड़ा सा ट्रेड यूनियन का इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो ट्रेड यूनियन के पॉइंटर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे, IR को IR के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे. ट्राई टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है. Yes, anyone else? So we would be finishing the session. Yeah, anyone else wants to ask anything?
मैम किसी ने पेपर वन के लिए पूछा था, हाँ, आई पेपर थिंक वन अपन you में can पेपर answer. वन के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया है। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है और कम्युनिकेशन है, एक लॉजिकल रीजनिंग है और एक यूनिट भूल रही हूँ, रिसर्च टीचिंग ICT कम्युनिकेशन computer. आईसीटी, People यस। people language. and पांच, हाँ 5 यूनिट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको बिल्कुल स्किप मत करो। पेपर वन में आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। पीडी जो है और हायर एजुकेशन है उसमें आपको सब कुछ नहीं करना है, बस आपको कुछ कुछ टॉपिक उठाने हैं जिसमें आपको लगे ठीक है ये मैं कर रहा हूं बट मैं अच्छे से कर रहा हूं। बाकी 5 यूनिट्स है, आपको बहुत अच्छे से करनी है कि उसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एटलीस्ट मैं 4 तो अटेम्प्ट करके आऊं। सी रीडिंग ठीक है, कंप्रिहेंशन बहुत इजी है। आपका अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर है ना तो 10 मार्क तो कहीं नहीं गए। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसा है कि आप एक एक पॉइंट रट सकते हो उसका, मतलब भले ही थोड़ा वास्ट हो गया लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है, आपको वो स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। आईसीटी भी बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप उसमें से ऐसे टॉपिक्स पढ़ सकते हो कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, कुछ टॉपिक जैसे आपका कई बार होता है डेटा इंटरप्रिटेशन बच्चों को नहीं समझ में आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए केवल पीवाईक्यू कर डालो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज कर डालो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने के, पीवाईक्यू ही करो और वहाँ से सेम उसी पैटर्न से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई अपने आप को एक दूसरे को कंपनसेट करता है। फॉर एन एग्जांपल डीआई टफ आ रहा है तो आपकी शिफ्ट में डेफिनेटली आरसी इजी आएगा, और आरसी अगर टफ आ रहा है तो डीआई आपका इजी आएगा। और मैं एक चीज यहाँ पे बोलूंगी कि जो 5 या वो बहुत टफ हो चुके हैं, उसमें बहुत इन डेप्थ लर्निंग की जरूरत है क्योंकि अब असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं। पहले होता था कि एक अपन को हिंट दे दिया जाता था, अब इतने क्लोज ऑप्शन आते हैं कि आप नहीं कर पाओगे। तो पेपर वन में आप 5 यूनिट्स बहुत अच्छे से करो, इन डेप्थ जितना प्रोफाउंड नॉलेज ले सकते हो उतना, और एक डीआई और आरसी। बाकी जो 3 यूनिट्स है मैथमेटिकल रीजनिंग, आई थिंक कि मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं थी मैथमेटिक्स में, मैं बहुत भागती थी तो मैं मैथ्स नहीं करती थी, मैं छोड़ के जाती थी। लेकिन पीडी और जो पीडी में आपको करंट जो आपका अभी सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, जैसे करंट न्यूज, 6 महीने उसको आप पहले ऑप्ट का पढ़ करिए। लो, बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं पढ़ना है। और हायर एजुकेशन में आपको जो यूजीसी के बारे में है या फिर जो भी कमिटीज वगैरह आई है, बैक रिसेंट प्री कमिटीज। इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो सारी चीजें आप करके जाओ और इससे आप पे पेपर वन आपका क्लियर हो सकता है। 32-33 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे आराम से। यस, सो और मैम पेपर लास्ट। वन के कुछ जो यूनिट्स है ना वो हमारे एमबीए के कोर्स में भी है, जैसे हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, एग्जैक्टली। आईसीटी। तो आप उससे अच्छे से कवर करो, तो आपका पेपर वन तो वैसे भी हो जाएगी 3 यूनिट्स कवर। बुक्स व्हाट डिड यू रेफर फॉर पेपर वन? सो केवीएस मदान आई बिलीव, मैंने हमेशा से उसको रेफर किया है। केवीएस मदान को प्रीफर मत करो बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी केवीएस मदान में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत है, गलत वो है। अपडेटेड नहीं हो रहे हैं, तो आप मिसगाइड हो जाओगे। आप किसी एक कोर्स को ऑप्ट करिए जहां पे आपको पता चलेगा कि कितना इन डेप्थ वो पढ़ा रहे हैं। और पेपर वन के साथ देखो क्या होता है, एमसीक्यूज नहीं मिलते हैं, आपको पीवाईक्यूज ही मिलेंगे, लेकिन एमसीक्यूज करना बहुत जरूरी है। तो आप एक ऐसे कोर्स को ढूंढिए जो आपको एमसीक्यूज करवा रहा है, हाँ, पीवाईक्यू के वो साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज करना इंपॉर्टेंट है पेपर वन का। यस, सरिता लास्टली इफ यू वांट टू सजेस्ट लर्नर्स को कि क्या टारगेट करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। मैम मैं तो यही प्रीफर करूंगी, आप बुक्स पढ़ना चाह रहे हो आप पढ़ो, वो आपका ऑप्शन है, लेकिन आप मैम की वीडियोस तो रेफर करो। यूनिट वाइज मैम ने सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, अपनी पीडीएफ में भी प्रोवाइड किए हुए हैं, मैंने चेक किया हुआ है। और यूट्यूब पे तो आपने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है सारी यूनिट वाइज। उसको पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज करो, पीवाईक्यू करो, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको एमसीक्यू कैसे करना है वो समझ आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यस, पायल लास्ट फ्यू सजेशंस। कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, खुद पे कॉन्फिडेंस, ये 3 चीजें अगर आपकी पर्सनालिटी में है, यू कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, स्ट्रेटेजी
थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 2 दिन 3 दिन बैठ के अपना स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। उस स्ट्रेटेजी को अपने ही फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप मोल्ड अप करते रहिए। होते हैं आप मोनोटोनस हो जाते हैं कभी कभी पढ़ने को लेके, तो आप उस चीज को मोल्ड करते रहिए और यूनिट्स का 10 10 दिन डिवाइड करिए। आईआर को 10 से 12 दिन मैक्सिमम दीजिए आपको, क्योंकि आप एक साथ करोगे मैम के एमसीक्यू को तो आपको बहुत ब्लंडर हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप एक एक टॉपिक को एक एक टाइम में डिवाइड करो, उसको 10 to 12 डेज का टारगेट बना के आईआर को कंप्लीट करो। मिनिमम वेजेस एक्ट ऐसे करके सबको 4 4 5 5 दिन दो, ताकि एग्जाम में आपको बर्डन ना आए और आप अच्छे से वेल डायरेक्टेड मैनर में आप क्रैक कर पाओ एग्जाम को। Yes, Madhusudan, you again raised your hand. Anything you want to add or ask? मैम इस बार ईडीसी नेट में काफी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था, तो मुझे सब ऑप्शन सही लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए? सी क्या मतलब हुआ ना फंडामेंटल। कि हाँ हाँ मैम। कहीं ना कहीं पे 2 एग्जाम या 3 एग्जाम्स में असर्शन रीजन क्वेश्चंस बंद कर दिए थे। तो मैंने जब एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज करवाई थी अपने स्टूडेंट्स को, मैंने वहाँ असर्शन रीजन करवाया था, एक्चुअली करवाए थे। आई डोंट नो क्यों करवाए थे, बट मुझे ऐसे लगा हो सकता है वो चीज़ रिपीट हो। अब देखो, असर्शन रीजन स्पेशली लेबर वेलफेयर में बहुत ईजी होते हैं। क्यों? कॉन्टेक्स्ट आपने पढ़ा होता है। जब वो 2 सेंटेंसेस दिए, इसका एक मैं आपको क्लास में भी बताऊंगी। यूजुअली क्या होता है, असर्शन और रीजन को करने का एक शॉर्टकट मानते हैं, एंड लगा दो। असर्शन के बाद में एंड लगा के रीजन अगर जुड़ता है तो वो रीजन है उसका। लेकिन मैंने जब पढ़ाया था, मैंने तब भी ये कहा था कि शॉर्ट की है, रीजन के बाद दैट्स वाई लगाओ। दैट्स वाई से अगर आपका असर्शन आंसर दे रहा है तो वो करेक्ट रीजन है। ठीक है, एंड से नहीं, एंड से हमेशा सही रीजन नहीं आएगा। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे असर्शन रीजन के, तो आई विल टेल यू कि कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो इजी रहता है, ऐसा बहुत कुछ टफ इजी, नहीं लगता फिर वो। बहुत कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूछा जाता है, और आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो असर्शन रीजन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स पे एम्फोसिस करना, कि हाँ असर्शन रीजनिंग में नेगेटिव वर्ड्स बहुत ज्यादा आते हैं, हाँ। ठीक तो है, आप उस पे एम्फोसिस करके एलिमिनेट कर पाओगे। फाइन। थैंक यू सो मैम। I believe this session will turn fruitful to everyone. Thank you, Payal, for your time. Thank you, Sarita, for joining, and थैंक यू सो everyone मच who have मैम। joined this session. For joining this session कि आप लोगों ने समझा हाँ ये fruitful हो सकता है, and you have been there. And yes, बहुत कम होता है कि मैं ऐसे sessions ले रही हूँ। यूजुअली स्टूडेंट्स मुझे बोलते रहते हैं, या काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि आप सेशंस लो, बट आई मेक श्योर कि एक आध बार ही सेशन हो, बहुत बार ना हो, और लेकिन वो फ्रूटफुल हो। राइट, आने वाले टाइम पे जब मुझे लगेगा कि हाँ हम मुझे और इनपुट्स देने हैं, तो हम ऐसे सेशंस और करेंगे। एंड कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू पायल, थैंक यू सरिता, थैंक यू। थैंक यू। Okay, so everyone can leave the session so that I can end.